Hello students, today I will start the reproduction in flowering plant. So flowering plant, that is also called as, you can say, the gymnosperm and the angiosperm, the flowers is developed. So flower is a reproductive word of the angiosperm plant and which is a modified vegetative bird, and this angiosperm is also known as Anthophyta, Phanerogames and spermatophytes. एंथोफाइटा मीन्स वो प्लांट जिनमें फ्लावर्स बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट. The phanerogames, that means where the flower it bears, means those plant which bears a flower known as phanerogames, which may be the gymnosperm or which may be angiosperm also. And the spermatophytes, that is those plant which having a seed like the gymnosperm and angiosperm. So flower which is a two different type of verb, which is a non-essential verb which is a non-essential verb and essential verb. Non-essential verb, which is also called the strile part, which is also called the accessory verb, and this non-essential verb having a two different type of floral part, that is the calyx and corolla. And the essential verb, which is also called the reproductive verb or the fertile part, and this essential verb which having a androecium and gynoecium. The unit of the calyx is known as sepal, and the unit of the corolla is known as petals. And the unit of androecium, which is known as stamen, and the unit of gynoecium, which is known as carpel. So यहाँ पे अगर हम लोग एक्सप्लेन करें फ्लावर, तो फ्लावर का जो कलर होता है विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेटल्स. जो पेटल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड द एंथोसायनिन पिगमेंट. And the sepals is always photosynthetic in function because which is produce the food and the green in color, that's why which called the sepaloid. And most of the corolla are the petaloid in nature. And this is as a reproductive verb which is the stamen, and this stamen which is consist of the androecium, which is consist of the anther, connective and filament. And next, the flower is explained by with the help of this figure. So in this flower structure, the green color part which is known as a sepal, which is a unit of calyx, which is mainly photosynthetic in function. And these petals, which is a unit of the corolla, which is mainly colorful due to presence of different kind of pigment like the carotenoids. And the male part, that is called as the androecium, this is called the male part. And this is called the male part. And this androecium is unit as a stamen and which is differentiated into the anther, filament and connective. And in this is a connective. And in this another one which is called as the gynoecium, which is a female part, which is a female part.
which is the female part, and which unit is known as carpel, and which is differentiated into the stigma, style, and ovary. And inside the ovary, so many different kinds of ovule is present. So this is a entire flower structure. हम लोगों ने जैसे इससे पहले चैप्टर्स में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स जो होते हैं वो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स में डिफरेंशिएट होते हैं, लाइक द प्री फर्टिलाइजेशन, like the fertilization and the post-fertilization events. So the pre-fertilization events means the pre-fertilization event that is takes place with the help of hormonal and structural changes. इसमें क्या होता है कि जो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं फ्लावर के अंदर, so many different hormonal changes and the structural changes will take place and which is differentiated and further development of floral primordia takes place. These are the floral primordia from which floral bud is developed. Like this is the floral primordia, and from which the floral bud is developed, and from which the flower is developed. And this is part of the pre-fertilization events. And in this flower, in case of male and female part, which may be called androecium and which may be called the gynoecium, the first part, that is sporogenesis, will take place. That is called the sporogenesis will take place, which may be the microsporogenesis and which may be the megasporogenesis. And this micro and megasporogenesis which takes place in the male and female part of the flower, in the first हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द लिटरल मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, that is microspore, and that is for genesis, that is development. और डेवलपमेंट किसका? माइक्रोस्पोर का. डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर का. तो ये जो डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर का होगा उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, which is always takes place inside the anther and which is part of stamen and which is main fertile part and which is the male fertile part. So हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टैमेन के स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस में. जो स्टैमेन होता है वो स्टैमेन जनरली एंथर, स्टिग्मा और कनेक्टिव में डिफरेंशिएट होता है. ये जो एंथर है, उस एंथर की अगर बात करें तो ये जो एंथर है, इस एंथर की इंपॉर्टेंस ये है, दिस इज द एंथर. इस एंथर में most of the angiosperm plant, these anther are bilobed and dithecous. And here the 4 different places पे sporangia का formation होता है. That's why which is also called as a tetrasporangia type. But in case of the Malvaceae family, this anther is single lobed, that is monothecous and bisporangiate. So this is a information about the anther, जहाँ पे anther mostly angiosperm plant पे anther कैसा होता है? Bilobed and dithecous. This is a 2 different kind of lobe, and this is a filament. And this is, that is point is connective, from which the filament is attached to the anther. So this is a structure about the stamen. Sorry. एंथर वॉल, जो एंथर है उसकी एंथर वॉल का जो डिफरेंशिएशन है बेसिकली, वो एंथर वॉल जनरली डिफरेंशिएट होती है पेरिक्लाइनली. जो एंथर वॉल है, ये एंथर वॉल जनरली पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है. पेरिक्लाइनली का मतलब होता है जब 2 डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाए. जब किसी भी पर्टिकुलर सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन और 2 डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाएं,
तो उसको बोलते हैं टू डिफरेंट प्लेन्स में दो डिफरेंट लेयर्स बने तो उसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो जब यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, इस पेरिक्लाइनल डिवीजन में बनती है एपिडर्मिस और दूसरी बनती है आर्कीस्पोरियल सेल। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है विच इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड periclinally and to form the primary parietal cell and the primary sporogenous tissue. And later on, this primary parietal cell is differentiated into the secondary parietal layer, and these primary sporogenous tissue are differentiated into secondary sporogenous tissue, and these secondary parietal layer are differentiated into further periclinally and to form a three different kind of layer like endothecium, like middle lamella, या मिडिल, नॉट मिडिल लैम्डा, दैट इज कॉल्ड द मिडिल लेयर, that is called the middle layer, and the innermost layer that is called the tapetum, and these secondary sporogenous tissue which are act as a microspore mother cell and which is diploid in nature and which is divide meiotically and to form a 4 microspore tetrad, and which is formed the 4 microspore tetrad. So this is a anther wall जो basically divide करेगी और सेंट्रल पार्ट में जहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वहां पे माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनते हैं जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं और ओवरऑल मियोसिस से बनते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल की हेल्प से बनते हैं. Thus, the formation of microspore or the pollen grain from the pollen mother cell or the microspore mother cell by meiosis, which is known as microsporogenesis. इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे जो एंडोथीशियम है वो एंडोथीशियम के अंदर क्या होता है कि एंडोथीशियम विच इज ऑलवेज फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड एंड विच हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ स्पोर एट मैच्योरिटी. ये जो है एंडोथीशियम, ये एंडोथीशियम मेनली इनके अंदर फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड होते हैं और ये हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, हेल्प इन डेहिसेंस या डिस्पर्सल, दैट इज कॉल्ड द डेहिसेंस ऑफ स्पोर में. मिडिल लैमेला नॉर्मली न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होती है. And the tapetum, which is also surrounded by the sporogenous tissue and which is multinucleated, and the polyploid in nature. And which is also nutritive in function. Which is also nutritive in function. So
इस प्रकार जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये माइक्रोस्पोर जनरली या माइक्रोस्पोर टेट्रेड जनरली दो टाइप का इनका फॉर्मेशन होता है। एक बोलते हैं सक्सेसिव टाइप और एक बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप। जो सक्सेसिव टाइप ऑफ स्पोरोजेनेसिस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस व्हिच इज मेनली टेक्स प्लेस इन मोनोकॉट, बट इन केस ऑफ द डाइकॉट द साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दिस माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन जो बनते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में व्हिच इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट। इनिशियली अगर हम लोग बात करें सक्सेसिव टाइप ऑफ मोनोकॉट्स माइक्रोस्पोर टेट्रेड फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर फर्स्ट टाइम कैरियोकाइनेसिस होती है और इनिशियली द डायड फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज अ टू काइंड ऑफ सेल, दिस इज नोन एज डायड, एंड हियर ड्यू टू unavailability of common cytoplasm, the karyokinesis is not synchronous type, and later on the isobilateral microspore tetrad is developed. The isobilateral microspore टेट्रेड डेवलप इन मोनोकॉट। इस मोनोकॉट के अंदर जहां सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनते हैं, यहां पे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी, डायड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कॉमन साइटोप्लाज्म नहीं होता। यहां पे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट सिंक्रोनस टाइप। That is a karyokinesis is not synchronous type, and the wall formation is always centrifugal. The wall formation is centrifugal. So this is a successive type of microsporogenesis. In case of simultaneous, here the microspore mother cell in which the karyogamy या karyokinesis takes place, not karyogamy, that is a karyokinesis will takes place, and here due to presence of common cytoplasm the karyokinesis is synchronous type and results the formation of, and after the cytokinesis results the formation of tetrahedral type of microspore tetrad. This is the tetrahedral type, and here the karyokinesis synchronous type. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो कॉमन साइटोप्लाज्म होने की वजह से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस सिंक्रोनस टाइप की, और यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंट्रीपीटल होता है। दैट इज ए वॉल फॉर्मेशन is centripetal. This is a main basic difference कि simultaneous के अंदर wall formation centripetal and the successive के अंदर cell wall formation is centrifugal. यहाँ पे isobilateral type of tetrad बनते हैं, यहाँ पे tetrahedral type of tetrad का formation होता है। तो ये तो बात थी टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड के बारे में। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर मेनली जो टेट्रेड का फॉर्मेशन होता है, ये टेट्रेड ज्यादातर 5 टाइप के बनते हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो टेट्राहेड्रल टाइप है, ये टेट्राहेड्रल टाइप मेनली डाइकॉट में बनते हैं। आइसोबाइलेटरल टाइप
मोनोकॉट में बनते हैं। डिकासेट शेप मैग्नोलिया के अंदर बनते हैं। And the T-shaped type of microspore tetrad which is formed in Aristolochia. And the linear type tetrad formation, which is in case of the microsporogenesis, it is rarely developed, but it is formed in halophytes. तो ये 5 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनते हैं जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट पर बनते हैं। हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है बेसिकली इस पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। तो जो माइक्रोस्पोर है उसी को हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है विच इज अ पार्शियल डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ये जो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होते हैं इनको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ज्यादातर ये हैप्लॉइड होते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ग्रेन को फर्स्ट टाइम हॉफमिस्टर ने डिस्क्राइब किया था। सो हॉफमिस्टर डिस्कवर्ड द पॉलन ग्रेन और स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन माइसाइटिस के अंदर मिलते हैं। And the largest pollen grain मिराबिलिस के अंदर मिलते हैं। So this is a mirabilis and this is a myositis. ये जो pollen grain है इस pollen grain की जो वॉल होती है इस वॉल को हम लोग स्पोरोडर्म बोलते हैं। ये स्पोरोडर्म जो pollen grain है बेसिकली this is a pollen grain. This is an individual pollen grain. And this pollen grain having a exine and intine. Exine and intine. This is a exine and this is a intine. So this exine which is also developed, which is also made up of sporopollen and which is a lipid derivative, and the intine is always made up of pectin, pectose and cellulose. And this exine which is also differentiated into ectexine and endexine. And this endexine which is also called nexine. And this ectexine that is ectexine which is called the sexine. Very important point here कि एक्साइन की एक्ट एक्साइन को बाहर वाली सरफेस को सेक्साइन और अंदर वाली सरफेस को नेक्साइन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक्ट एक्साइन इट इज आल्सो कॉल्ड एक्ट एक्साइन दैट इज कॉल्ड सेक्साइन एंड द नेक्साइन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द nexine which is also this is known as endexine. So this is a partially developed male gametophyte and the study of pollen grain is known as palynology. The study of pollen grain is known as palynology, and this pollen grain which is mainly developed in the gymnosperm and angiosperm and intine which later on form a pollen tube.
where axon is absent, which is known as germ pore. If these are a intine and these are axon, and where is the axon is absent, this is called germ pore. So on the basis of germ pore, these pollen grain are two types, that is monocolpate and tricolpate. Monocolpate, that is having a single germ pore. Example, monocot. And those pollen grain which having a more than 2 germ pore known as tricolpate, and which is example, that is dicot. डाइकोट के अंदर, डाइकोट पॉलन ग्रेन के अंदर जो पॉलन ग्रेन होंगे वो ट्राइकॉल्पेट होंगे, जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जर्म पोर होंगे, जबकि मोनोकॉट के अंदर मोनोकॉल्पेट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होंगे जहां पे एक जर्म पोर होगा। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन जनरली क्या करते हैं, दिस पॉलन ग्रेन आर जर्मिनेटेड इन सीटू इन कंडीशन। इट मीन्स कि इनका जो जर्मिनेशन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। एंड द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट इज, जो फर्स्ट सेल होती है वो पॉलन ग्रेन की, उसको हम लोग मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ये जो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट है, इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, तो each microspore mother cells which is divided meiotically to form a 4 microspore, and these microspore cell, your microspore, and that is called the pollen grain, which is haploid in nature. If these are meiotically divided to form a large vegetative cells and the generative cells. ये जो लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव और ट्यूब सेल्स, और जो लार्ज ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। मीन्स दिस पॉलन ग्रेन लाइक दिस। This is a vegetative cell, and this is a generative cell. ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनके अंदर मोर रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं और इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है, जबकि जेनेटिव सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का साइज स्मॉल होता है और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है इस वेजिटेटिव सेल्स के। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो 2 सेल्ड स्टेज है, 2 सेल मींस वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल, सो 2 सेल्ड स्टेज आर गेट रेडी फॉर pollination in the 60% plant of angiosperm, where the 2 celled stage get ready for pollination, while the rest of the angiosperm, the 3 celled stage pollen grain get ready for pollination. So this is vegetative and generative cells, and from these generative cells, when this is divided mitotically to form a 2 male gamete, and which is non-motile. So this is a microsporogenesis. इस microsporogenesis में microspores बनेंगे, and from this microspore the 2 male gamete is developed, which is known as microgametogenesis. This is known as microgametogenesis. That is formation of the 2 male gamete developed from each pollen grain. And this male gamete is developed by the 3 mitotic division, जो कि pollen grain के अंदर देखने को मिलेगा। जब पहला डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बनेंगे, वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल। नेक्स्ट डिवीजन होगा तो जेनेटिव सेल्स के अंदर फिर फर्दर 2 सेल्स बनेंगी, बॉडी सेल एंड
स्टॉक सेल एंड द बॉडी सेल से के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होगा, थर्ड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द टू मेल गैमेट. So this is called as microgametogenesis, that is formation of male gamete from microspore. This is the main entire thing about the microsporogenesis. And some of the economic importance of the pollen grain and its viability. कहते हैं कि ये जो pollen grain होते हैं ये कई सारे टाइप की एलर्जी कॉज करते हैं और लाइक द ब्रोंकाइटिस और द अस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. इंडिया में एक कैरेट ग्रास होती है जो ज्यादातर एक हमारे वीट के साथ जब वीट इंपोर्ट किया गया तो वहां पे एक कैरेट ग्रास का सीड आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनियम. बट नाउअडेज दीज आर ग्रो in every places in every corner of the India, that is it is ubiquitous in nature and causes several different kind of pollen allergy. So ये pollen grain जो होते हैं इनकी वजह से कई डिफरेंट टाइप के फीवर्स होते हैं. कॉमनली इनको हम लोग हे फीवर बोलते हैं और ज्यादातर ये pollen grain की एलर्जी से या चिनोपोडियम अमेरंथस जो बथुआ और चौलाई बोलते हैं, इन चिनोपोडियम और बथुआ के जो pollen grain होते हैं उनसे भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी क्रिएट होते हैं. दूसरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में इस pollen grain को हम लोग न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज करते हैं, विच इज बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड एज एन pollen tablets. And it has been claimed that also कि pollen grain का कंजम्पशन जो होता है वो क्या करता है, परफॉर्मेंस और एथलीट्स और हॉर्स रेसेस को बढ़ा देता है. अगर हम लोग pollen grains के कंजम्पशन को यूज करना शुरू कर दें या pollen grain का कंजम्पशन शुरू कर दें तो एथलीट्स की परफॉर्मेंस और हॉर्स रेस की में हॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. So that's why which is used as a food supplement also. And another important heading that is pollen viability. जो pollen grain होते हैं बेसिकली उनका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जर्मिनेट का. तो when the pollen grain retain the ability to germinate, which is called the pollen viability. कुछ pollen grain ऐसे होते हैं जिनकी viability period just half hour की होती है, 30 minutes की होती है, like the wheat and rice. इनके अंदर it lose the viability within 30 minutes. इसलिए इनको जर्मिनेट करना पड़ता है, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं और वहां जर्मिनेट करना पड़ता है आधे घंटे के अंदर. जबकि कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक द रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलोनेसी जिनकी वाइबिलिटी पीरियड सेवरल मंथ का होता है, एक महीने का भी हो सकता है और उससे ज्यादा का भी हो सकता है. पॉलन ग्रेन को हम लोग ज्यादातर इसलिए क्या करते हैं, इनको जो अच्छे पॉलन ग्रेन होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनको हम लोग नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में -160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर लेते हैं. सो द pollen grain कैन बी प्रिजर्व इन द लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड एज अ pollen bank इन क्रॉप ब्रीडिंग. क्रॉप ब्रीडिंग पर्पस से हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं. सो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाइबिलिटी ऑफ pollen grain. वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज यहीं से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अनदर वन इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. कुछ ही पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट है पॉलन किट. जब इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पॉलन ग्रेन के अंदर ऑयली लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो ऑयली लेयर बनती है इसकी वजह से इस पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं पॉलन किट. सो पॉलन किट दैट इज दोज पॉलन ग्रेन व्हिच हैविंग ऑयली लेयर एंड सच ऑयली लेयर की वजह से इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है. दस इट हेल्प्स इन एंटोमोफिलस पॉलिनेशन. क्या यू कैन से इट इज हेल्प इन एंटोमोफिली. दूसरा पॉइंट कि जब पॉलन ग्रेन होते हैं ऐसा नहीं होता कि मक्खी का पॉलन ग्रेन उड़ करके पहुंच जाए आम के पेड़ पे. सो द इंट्रैक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स द स्टिग्मा आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय लिस्टिन. तो इसलिए मक्खी का पॉलन ग्रेन मक्खी के ऊपर ही पहुंचेगा, वहीं जर्मिनेट करेगा, उसका जर्मिनेटिंग पीरियड, वाइबिलिटी पीरियड अलग अलग होगा. एक और अनदर वन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं जीनिया. कभी आपने जियामेज देखा होगा, उस जियामेज का नॉर्मल उसके जो एंडोस्पर्म या कर्नल का कलर होता है वो येलोइश कलर का होता है. तो जो येलोइश कलर है वो बेसिकली इनिशियली व्हाइट कलर का होता है. तो ड्यू टू द फॉरेन पॉलन ग्रेन द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन द विजिबल कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड जीनिया एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फॉक. For example, in Siamese, the white endosperm are changed into yellow due to the presence of foreign pollen grain. This is called the Xenia. So, Xenia discovered in Siamese, where the yellow color of endosperm is developed due to the foreign pollen grain. So, another word is the Metaxenia, and it was discovered by the Swingen in Phoenix dactylaria, and it is affect the foreign pollen grain on outside the tissue on seed coat, which is known as Metaxenia. कभी आपने कैस्टर का सीड देखा होगा, इस कैस्टर सीड के ऊपर कुछ डिफरेंट कलर के पैच मिलते हैं, ब्लैकिश, ब्राउनिश
ये जो ब्लैकिश और ब्राउनिश जो डिफरेंट कलर्स के पैच हैं, ये पैच इस सीड कोड के ऊपर तभी देखने को मिलते हैं जब इनके अंदर मेटाजीनिया होता है। तो कलर जो होते हैं सीड कोड के ऊपर जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। सो इफेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन आउटसाइड द टिश्यू ऑन सीड कोड दैट इज कॉल्ड मेटाजीनिया। एग्जांपल है कैस्टर सीड दैट इज रिसिनस कम्युनिस। लास्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक दैट इज नेमैक फेनोमेना। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है निमैक। ही डिस्कवर्ड द पॉलन एम्ब्रियो सैक इन हियासिंथस ओरिएंटलिस। हियासिंथस ओरिएंटलिस के अंदर इन्होंने एक स्पेसिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं निमैक फिनोमेना। इन्होंने डिस्कवर किया पॉलन एम्ब्रियो सैक। अकॉर्डिंग टू द निमैक द जनरेटिव सेल्स इज डिजेनरेट। जो पॉलन ग्रेन में जनरेटिव सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं, एंड द वेजिटेटिव सेल्स डिवाइडेड 3 टाइम्स एंड टू फॉर्म ए 7-celled 8 nucleated structure which is called the embryo sac like structure which is developed from the pollen grain. That's why which is known as pollen embryo sac. But some of the other scientists suggested that all these changes takes place due to the necrohormone and such is a abnormal structure. So this is a important headings and important point about the microsporogenesis. आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के डिफरेंस में। तो थैंक यू वॉचिंग सच यूट्यूब चैनल एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।